Good morning, dear students. Welcome to my channel. Let's learn economics with Abdul Hamid. Today, in this video, we will discuss about the status of India's industrial sector at the time of independence or colonial period. What was the status of India's industrial sector at that time or during the colonial period? We will discuss them in details in today's video. आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग यहाँ पे जो कॉलोनियल पीरियड में और इंडिपेंडेंट का पहले जो इंडिया का इंडियन इंडस्ट्रियल और इंडियस इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हालत था, उसका स्टेटस क्या था, किस तरह वो था इंडस्ट्री, ये सब का बारे में क्या करेंगे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। आजिर ভিডিওত আমি আলোচনা কৰিম যে স্বাধীনতাৰ সময়ত ভাৰতৰ উদ্যোগৰ অৱস্থা কি আছিল বা কেনে ধৰণৰ আছিল। সেই সময়ত উপনিবেশিক শাসনৰ সময়ত ভাৰতৰ উদ্যোগৰ অৱস্থাটো কেনে ধৰণৰ আছিল বা উদ্যোগৰ যেটো অৱস্থিতি আছিল হেতু কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে আজিৰ ভিডিওত ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। So before going to the status of industrial sector, we have to know that in my last video I have discussed about the agriculture sector. So like agriculture, India also could not develop sound industrial base under the British rule, and there was no sound industrial base under the British rule. Even the country's world famous handicrafts were totally ruined by the British rule. The British rule in India led to the decay of world famous traditional Indian handicrafts. Due to lack of investment opportunities, growth of modern industries was restricted. During that time, basically, like agriculture, India's industry was not sound, or there was no such type of industry. Basically, during that time, our world famous handicrafts were also ruined by or destroyed by the British rulers or the colonial period. उस टाइम हमारा मतलब वर्ल्ड फेमस जो हैंडीक्राफ्ट्स था, उस हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री भी कूटेज इंडस्ट्री क्या हो गया, ब्रिटिश का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे या पॉलिसी था, कमर्शियल एंड ट्रेड पॉलिसी, उस सब वजह से क्या हो गया, हमारा वो कूटेज इंडस्ट्री भी ब्रिटेन का टाइम पे ख़त्म हो गया था। So the poor state of India's industrial sector became clear from the following. नीचे कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हमारा जो इंडस्ट्री था इंडिपेंडेंस से पहले या कॉलोनियल पीरियड में वो सब क्या था, पूर इंडस्ट्री था। सो द फर्स्ट फीचर इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. The British or the colonial government adopted the policy of de-industrialization in India, and it has two objectives. সেই সময়ত কি কৰিছিল, কলোনিয়েল উপনিবেশিক শাসনতে ভাৰতত কি কৰিছিল, অনাউদ্যোগিক বা উদ্যোগ কৰ্তন নীতি আচলতে কি কৰিছিল, অৱলম্বন কৰিছিল। তাৰ মূলত দুটা উদ্দেশ্য আছিল। उसका मेन मकसद तो था, एक तो मकसद यही था, मतलब जितना भी गुड्स एंड सर्विस क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करेगा, वो सब किसके लिए एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया। ब्रिटिश का जो इंडस्ट्री है, ब्रिटिश का जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, वो सब इंडस्ट्री के लिए इंडिया क्या करेगा, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करेगा। और एक मकसद क्या था, ब्रिटिश उस सब रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करेगा वो सब आके इंडिया पे इंपोर्ट करेगा या इंडिया पे सेल करेगा। तो बेसिकली दैट टाइम इसके लिए भी क्या हुआ था, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और जो कूटेज इंडस्ट्री था वो सब ब्रिटिश ने रूइन ख़त्म कर दिया था। बेसिकली किसके लिए, जो इंडिया क्या करेगा, ब्रिटेन का जो इंडस्ट्री उन लोगों के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा और वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस्ड होके वो गुड्स आके इंडिया पे क्या होगा, ब्रिटेन लोग सेल करेगा। तो इस टाइम ये पॉलिसी था और इसकी वजह से भी हमारा जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट्स और कूटेज इंडस्ट्री था वो सब ख़त्म हो गया था। सेकेंड वन, very few modern industries were there during that period. অলপ সংখ্যক আধুনিক উদ্যোগ আছিল সেই সময়ত। Industrial development on the modern lines was limited, which took place during the second half of the 19th century.
only those industries were developed which could serve British interest. मैंने बोला ही है, मतलब British developed or the Britishers or the colonial government developed those industries which can serve the raw materials to British, or which can serve the interest to the British, or which can give profit to the British. So those industries were basically established or implemented by the colonial government, and these industries are basically of cotton industry, jute, iron and steel industry, plantation and mining etc. So these are the industry जो सिर्फ ग्रो किया था ब्रिटिश ने उन लोग के फ़ायदा के लिए. तो मॉडर्न जो इंडस्ट्री होगा उस पर इतना इंडस्ट्री नहीं है, वेरी फ्यू, मतलब ये लगभग 7 या 8 इस तरह कुछ इंडस्ट्री उस टाइम ब्रिटेन ने हमारा देश पे इस्टेब्लिश किया था. तो इससे पता चलता है जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और कॉलोनियल पीरियड हमारा इंडस्ट्री का हालत बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मॉडर्न जो इंडस्ट्री था वो बहुत ही कम मॉडर्न इंडस्ट्री था. तुम गिनती कर सकते हो इतना मॉडर्न इंडस्ट्री था उस टाइम. द नेक फिशर्स, जिससे पता चलता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल कंडीशन ख़राब था वो है लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, मूलधन जातीय उद्योगों अभाव. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री व्हिच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स व्हिच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स. मतलब कैपिटल गुड्स industries are those goods industry which can produce the machinery equipment, tools which may be used for producing consumption goods. And during British rule there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. British ruler didn't pay any attention for their promotion, as they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments. British didn't pay any kind of attention to develop our capital goods industries. They always wanted that we will depend on them in case of capital goods industries or in case of machinery equipment. That's why they didn't develop our capital goods industries. They only thought that we will not develop the industries of India because they have to import goods, capital goods as well as machinery equipment from Britain. So that was the main motive of the Britain not to develop the capital goods industries. उस टाइम में क्या था, जब ब्रिटेन ने हमारा जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था, बोल सकते हो बहुत ही कम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था, और ब्रिटिश ने और कॉलोनियल गवर्नमेंट और ब्रिटिश ने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिया था उस टाइम हमारा जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो सब डेवलप करने के लिए. किस लिए नहीं दिया था? वो हमेशा सोचते थे, उन लोगों का मकसद ये था कि अगर भी इंडिया पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हम लोग डेवलप नहीं करेंगे तो इंडियन पीपल क्या करेंगे, बाहर से दैट इज़ इंग्लैंड से वो कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स सब क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, जिससे इंग्लैंड को फ़ायदा होगा या ब्रिटेन को फ़ायदा मिल सकता है. उसके लिए वो सब क्या कुछ अटेंशन ही नहीं दिया था ये कैपिटल गुड्स डेवलप करने के लिए ब्रिटेन ने. কি কৰা আছিল, সেই সময়ৰ ভাৰতৰ যিটো মূলধন জাতীয় উদ্যোগ, সেই সৰহসংখ্যক বা ক'বলৈ গ'লে নগণ্য সংখ্যক মূলধন জাতীয় উদ্যোগ আছিল, আৰু সেই উদ্যোগসমূহ উন্নত কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱা নাছিল. কাৰণ ব্ৰিটিছৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল, যদি ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক গধুৰ উদ্যোগ আছে বা মূলধন জাতীয় উদ্যোগ আছে সেইসমূহ যদি আমি উন্নত নকৰোঁ তেনেহ'লে কি কৰিব, ভাৰতবৰ্ষই আমাৰ পৰা কি কৰিব, বস্তু বাহিনী আমদানি কৰিব, আৰু তেতিয়া কি হ'ব, ইংৰাজসকলৰ প্ৰফিট হ'ব, ইংৰাজসকলৰ লাভ হ'ব. গতিকে সিহঁতৰ লাভৰ উদ্দেশ্যে, সিহঁতৰ বস্তু ভাৰতত বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ যিবিলাক মূলধন জাতীয় উদ্যোগ আছিল সেই উদ্যোগসমূহ কি কৰা নাছিল, কোনো ধৰণৰ উন্নত কৰা নাছিল বা সেইবিলাক উন্নত কৰাৰ কোনো প্ৰচেষ্টা হাততে লোৱা নাছিল. इससे पता चलता है, फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन शो दैट और वी कैन से दैट आवर इंडिया's इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज वेरी पोर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल और ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रिब्यूशन टू जीडीपी. जीडीपी बरंगनी कॉन्ट्रिब्यूशन अनुदान किमान होगा. द ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रिब्यूशन टू द जीडीपी वाज वेरी स्मॉल ड्यूरिंग दैट टाइम. We know that from our previous point, we know that there was a hardly a few or very few capital goods industries or industries were there in Britain. So the growth rate of modern industries is very low, and if industries were less, then their contribution to the economy will be less. So during that period, colonial period before independence,
ओनली 17% ऑफ टोटल जीडीपी, कंट्री का जो टोटल जीडीपी होता था उसका 17% सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर से आया था। मतलब कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स जीडीपी भी कम था। जे कि करा হয় জিডিপি বা জাতীয় আয় বৰঙণি, যিহেতু সেই সময়ত ব্ৰিটেনে কি কৰা আছিল, ইমান উদ্যোগ বা মডাৰ্ণ উদ্যোগসমূহ গঠন কৰা নাছিল আৰু সেই উদ্যোগসমূহ উন্নত কৰাৰ কোনো প্ৰচেষ্টা হাতত নাছিল, যাৰ ফলত উদ্যোগ কম আছিল আৰু যিয়ে কি কৰিছিল যিটো জাতীয় আয় বৰঙণিও কম আছিল। আমি সেই সময়ত ক'বলৈ গ'লে মাত্ৰ 17% কি কৰিছিল জাতীয় আয় কেৱল উদ্যোগ খণ্ডৰ কি আছিল বৰঙণি আছিল 17%। नेक्स्ट वन इज़ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस टाइम पब्लिक सेक्टर का क्या था, रोल इतना नहीं था, हार्डली कितना पब्लिक सेक्टर था। बेसिकली कहाँ पे पब्लिक सेक्टर, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स। कुछ मतलब पब्लिक सेक्टर था, ओनली वॉज कन्फाइंड ओनली द रेलवेज। मतलब हार्डली 10 मैक्सिमम 10 भी नहीं होगा, 6-7 इतना कुछ मतलब जो था, मतलब पब्लिक सेक्टर। उस टाइम इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री नहीं था। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था ब्रिटेन का या कॉलोनियल पीरियड में वो बहुत ही कम था। इससे पता चलता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही बैकवर्ड और पुअर था। नाउ यहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस फॉर द डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कि স্বাধীনতাৰ সময়ত বা ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত ভাৰতৰ কুটিৰ শিল্প ধ্বংসৰ মূল কাৰণসমূহ কি কি, কজেছ, হোৱাট আৰ द कॉजेस। फर्स्ट वन, द ब्रिटिश रूलर वेंट फॉर डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी। ब्रिटिश का जो डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी था, पहला वन क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी। ब्रिटेन ने और इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या इंडिया पे एक डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी इम्पोज किया था। जिस पॉलिसी के हिसाब से क्या होता था, कोई लोग अगर क्या करते हैं, इंग्लैंड से गुड खरीद के इम्पोर्ट करते, इंग्लैंड से कोई भी जो गुड इम्पोर्ट होता था उसका टेरिफ नहीं था। लेकिन इंडिया अगर क्या होता है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट, सपोज़ इंडिया बाहर में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई देश में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेरिफ इम्पोज किया हुआ था। सो ये जो टेरिफ पॉलिसी है, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ मतलब वन काइंड ऑफ टैक्स। सो ये जो टेरिफ है, इस टेरिफ की वजह से क्या होता था, हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री वो बंद हो गया था। जे हम लोग अगर बाहर देश में सेल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, लेकिन बाहर देश से अगर कोई भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते थे इंग्लैंड से स्पेशली, तो उसमें टेरिफ फ्री था या टेरिफ नहीं था। दूसरा क्या है, जे कुछ विद द डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली गुड लाइक नवाब्स, राजास, प्रिंसेस, एम्पायर्स, स्टेट पेट्रोनेस टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स केम टू एन एंड। कुछ जो प्रिंसली स्टेट या प्रिंसली बेसिकली प्रिंसली गुड्स, जैसे नवाब लोग होता है या राजा जो प्रिंसेस होते हैं, वो लोग क्या करते थे, इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते थे। वो लोग किस चीज़ को यूज़ करते थे, वो लोग इंग्लैंड का जो मशीनरी प्रोडक्ट वो चीज़ यूज़ करते, इंडिया का हैंडमेड प्रोडक्ट वो सब यूज़ नहीं करते। इसकी वजह से भी हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था या डिस्ट्रॉय हो गया था। द नंबर 3 को है जो कंपटीशन। हम लोग क्या करते थे, उस टाइम हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स होता था वो हैंडमेड था, तो उस हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स या क्राफ्ट्स ब्रिटिश का जो मशीन मेड प्रोडक्शन था उससे कंपटीशन नहीं कर पाता था, तो उसके लिए भी हमारा इंडस्ट्री क्या हो गया, शट डाउन या बंद हुआ था। द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कुड नॉट फेस इंक्रीजिंग कंपटीशन ऑफ ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स व्हिच वर चीपर। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, उस टाइम हमारा जो भी प्रोड्यूस करते हैंडीक्राफ्ट वो हैंडमेड था, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा था और प्राइस भी हाई होता था। लेकिन ब्रिटिश ने मशीन से बनाया था, मशीन में अगर बनाते तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से उसका प्राइस भी कम था। तो इसलिए क्या होता, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स थे वो ब्रिटेन का वो मशीन मेड का गुड का हमने कंपटीशन नहीं कर पाया, इसके लिए हमारा जो कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट वो रुइंड हो गया था या डिके हो गया था। नंबर क्या हो सकते, और एक कारण क्या हो सकते हैं, कुछ लोग इंडिया पे ऐसा कुछ लोग क्रिएट हो गया जब ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस या फॉरेन का इन्फ्लुएंस से कुछ एक क्लास ऑफ पीपल इंडिया में इमर्स्ड हो गया, जो लोग क्या करते थे, ब्रिटेन का या ब्रिटिश का गुड्स पसंद करते थे इंडिया का गुड्स से। मतलब इंडिया का गुड्स छोड़ के, मतलब इंडियन प्रोडक्ट को छोड़ के ब्रिटिश का गुड्स प्रोड्यूस करते थे बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन। आज भी है ना, कोई मतलब ट्रेडिशन या कल्चर, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के लिए बहुत सारा
आज भी हमारा देश में बहुत सारा पीपल ऐसा निकलेगा, क्लास ऑफ पीपल जो सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही पसंद करते, वो इन्फ्लुएंस के बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज। तो उसी तरह उस टाइम भी ये था, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज की वजह से कुछ लोग हमारा गुड्स को पसंद नहीं करके ब्रिटिश गुड्स को पसंद करते थे और वही परचेस करते थे। उसके लिए उसकी वजह से क्या होता था, उस टाइम हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स था या डोमेस्टिक कॉटेज गुड्स था, उस सब का डिमांड मार्केट में कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्री क्या हो गया, बंद हो गया था। So basically this was the condition of industrial sector at the time of independence. Now from today's discussion one question may come in your exam. State the main causes for the decay of Indian handicrafts during the British period. ব্ৰিটিছৰ সময়ত ভাৰতৰ কুটিৰ শিল্প নাইকিয়া বা ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰণসমূহ কি আছিল? ब्रिटिश का टाइम पे जो हमारा हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया था, डिके हो गया था, रुइंड हो गया था, उसका मेन कॉजेस क्या है हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो लोग देख लेना, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।